ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਇਨਟੇਕਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਡੈਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਚਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਿਪਸਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੌਰਾ ਸਲਾਨੋਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਪਸਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਬਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੀ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ रूबरू कराने का, की बेनिफिट देखते हो ਉਹਦੇ ਲਈ? देखिए सर, अगर मैं इंडिया की बात करूं, एक ऐसी कैटेगरी है जो यूनिवर्सिटी में डिग्री करना चाहती है, मास्टर्स करना चाहती है, तो टाइम टू टाइम हम कॉलेजेस को लेके आते हैं। तो आज हम यूनिवर्सिटी को लेके आए हैं, और वो यूनिवर्सिटी जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ओंटारियो प्रोविंस में नॉर्थ पे में ये यूनिवर्सिटी है। इनके प्रोग्राम वैरायटी है। तो आज स्पेशल मैंने रिक्वेस्ट की मिस लोरा से कि जी हमें आपको टीवी पे बैठाना है, क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड है कि जी कॉलेज को तो आप लेके आते हो, यूनिवर्सिटी को लेके आओ। बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो डिग्री करना चाहता है, मास्टर करना चाहता है, उनके लिए आज ये टीवी शो है। Laura, first of all, welcome from my and from my team side, and please tell me and my viewers something about your university and campus. Well, thank you for the opportunity of being here today. In behalf of our Nipissing University community, I'm more than pleased to share some thoughts and information about Nipissing University. We are a small and young university that is located in North Bay, Ontario. That means that we are 4 hours driving from Toronto north. And before becoming Nipissing University, we were the School of Education of Ontario. So our roots are in education. Before that, everybody was going to us to become a teacher. And that's why our School of Education is one of our strongest programs. But we also are strong in nursing. We also are strong in business. We also are strong in biology, psychology, and also in our environmental programs. We are a social science university. And when I say small, it's because we are only 5,000 students, and many of those, or most of those, are domestic students. So when an international student is coming to us, it's going to have a real Canadian experience because it's going to be studied within an Canadian environment. That's good. And how many intakes do you have? We now have 2 big intakes. Our biggest intake is in our fall intake, and then we have winter intake. Okay. ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ डिफरेंट ਤੇ ਕੀ अलग देखते हो इस यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ? देखिए सर, इनके पास प्रोग्राम यूनिक है और स्मॉल क्लास साइज़ है। इसके अलावा स्पोर्टिव प्रोफेसर है, सेफ स्मॉल फ्रेंडली कम्युनिटी यहाँ पे है, और ओंटारियो प्रोविंस में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो ये एक सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा ये नंबर 1 है स्पोर्ट्स सर्विस में, स्टूडेंट्स की सर्विसेज में स्पोर्ट करने में, तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर बच्चा जाएगा तो वेल सेटल होगा ही होगा, और उससे सबसे बड़ी बात है कि प्रोग्राम यूनिक है। अगर मैं प्रोग्राम की बात करूँ, जैसे इनके पास अगर मैं यूजी प्रोग्राम की बात करूँ, तो जो बच्चा आर्ट का है, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड है, चाहे मेडिकल है, चाहे नॉन मेडिकल है, हर एक बैकग्राउंड के लिए बच्चे के पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बिजनेस के प्रोग्राम है जिसमें बिजनेस में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा चाइल्ड एंड फैमिली स्टडीज़ है, क्लासिकल स्टडीज़ है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, क्रिमिनल जस्टिस है, डाटा साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल एंड फिजिकल ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है, फाइन आर्ट है। इसके अलावा हिस्ट्री है,
ज्योग्राफी है, लिबरल आर्ट है, मैथमेटिक्स है, नर्सिंग प्रोग्राम इनका बहुत पॉपुलर है, इवन कि सितंबर इनटेक तो क्लोज ही हो चुका है। इसके अलावा फिलोसफी है, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, इसके अलावा सोशल वेलफेयर एंड सोशल डेवलपमेंट, सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी, दीज आर द प्रोग्राम। मतलब हर एक फील्ड के बच्चों के लिए प्रोग्राम है। ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਜੀ, ਕਰ यहाँ बहुत सारे ऑप्शन ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਜੀ, ਜੀ, ਰਿਲੇਟਡ, ਜੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। जी जी जी। और यहाँ पे सारे ऑप्शन है जिन बच्चों ने 12 कर रखी है और आपके अगर 6.5 बैंड नो लेस देन 6 है तो और 60% मार्क्स है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ओवरऑल हमें 60% चाहिए और मेजर सब्जेक्ट्स में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। 4 ईयर की डिग्री है और डिग्री का अपनी ही वैल्यू है। जो बच्चे डिग्री करते हैं नेचुरल सी बात है वो ज्यादा 15 पॉइंट वैसे पीआर दे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲ हाँ जाने हैं। उनके पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, पीआर जल्दी है, उनको सैलरी पैकेज अच्छा है और हर एक एम्प्लॉयर को अगर डिग्री वाला बच्चा मिलता है तो वो ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है बच्चे के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी। Laura, tell me something about that area, North Bay. What type of and what kind of opportunities for the students are there? The city of North Bay is a beautiful small city, but being small doesn't mean that we are small in opportunities. We are big in opportunities too. There are many jobs for international students on campus, outside campus. The city has everything. We as a university, we have more than 720 acres. So Okay. we have a beautiful environment. The city is beautiful and big for those who love the outdoor opportunities, with the outdoor life. And we have 4 seasons. So there are opportunities to learn how to ski, to do snowshoeing, but there are opportunities to do canoeing and swimming during the summer. And also our fall is one of the most beautiful scenarios that you can see in Canada. So the city is beautiful, the city has beautiful opportunities for everybody, and it's a welcoming city. And maybe this is a good opportunity also to mention that as a small northern city, we are part of a program sponsored by the government that is called the RNID program, which is the Rural and Northern Immigration Pilot Program. So that means that our city is welcoming immigrants through that program. So how many already that international students are studying there in your campus? Right now, we only have 120 international students coming, and we are welcoming, and we are waiting for more. Waiting for more, yeah. Yeah. You want to welcome our students to come there and take admission via that Western Overseas? Yes, of course, that's the way. That's a way. Yes. So ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਨਿਪਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੁਐਰੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ? ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? देखिए 2 मेजर इनटेक है, एक सितंबर है और एक जनवरी इनटेक है। कुछ सितंबर इनटेक में ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं बट मैक्सिमम भी ओपन है। जैसे मैं यूजी प्रोग्राम की बात करी, यूजी प्रोग्राम सारे सितंबर इनटेक के लिए ओपन है। अगर 6.5 बैंड नो लेस देन 6 है और आपके 60% मार्क्स है, मेजर सब्जेक्ट्स में आपके 55 है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा इनके पास मास्टर्स भी है और पीजी प्रोग्राम भी है। मैं पीजी प्रोग्राम की थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि बहुत सारी एक स्टूडेंट्स की कैटेगरी है जो पीजी प्रोग्राम के लिए सर्च करती है और यूनिवर्सिटी के लिए सर्च करती है। देखिए यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हाई वीज़ा सक्सेस रेट रहेगा इन कंपैरिजन टू कॉलेज। जो पोस्ट बैचलर डिप्लोमा है इनके पास, जो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस एंड मार्केटिंग। रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड नो लेस देन 6 है, 60% मार्क्स है, 2 ईयर के ये पीजी प्रोग्राम है। इसके अलावा इनके पास पीजी सर्टिफिकेट भी है, अगेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जनरल मैनेजमेंट है, 60% की रिक्वायरमेंट है, 6.5 बैंड नो लेस देन 6। मास्टर्स की ओर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, इनके पास बहुत सारे मास्टर्स हैं, कुछ ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं और कुछ अभी ओपन है। जैसे जो अभी ओपन है सितंबर इनटेक के लिए, मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स, मतलब ये एक यूनिक प्रोग्राम है। सितंबर इनटेक में आप जाना चाहते हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 6.5 बैंड ईच मॉड्यूल में चाहिए, ओवरऑल भी 6.5 चाहिए और ईच भी 6.5 चाहिए और 65% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा जो अदर प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, मास्टर ऑफ आर्ट्स सोशियोलॉजी, मास्टर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, मास्टर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, मास्टर ऑफ साइंस किंजियोलॉजी, दीज आर द मास्टर प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पे पीटी भी एक्सेप्टेबल है। ओके। जैसे यूजी में आईएलटीएस की बात करी, 6.5 बैंड नो लेस देन 6 है, ऐसे ही पीटी में 58 ओवरऑल चाहिए हमें और नो लेस देन 56। और इसके अलावा अगर आप पे क्या नाम है
जा रहे हैं मास्टर्स प्रोग्राम में, तो मास्टर्स में आपको 60%, 60 ओवरऑल चाहिए, 63 सॉरी, और नो लेस देन 60। मास्टर्स के लिए पीटी में 63, नो लेस देन 60, और आइल्स में 6.5 ईच। इसके अलावा अगर यूजी में जा रहे हैं और पीजी डिप्लोमा में जा रहे हैं तो आइल्स की रिक्वायरमेंट 6.5 नो लेस देन 6 है, और पीटी की रिक्वायरमेंट 58 नो लेस देन 56 है। एप्लीकेशन फीस फॉर द मास्टर प्रोग्राम $130 है, और यूजी और पीजी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट जो क्या नाम है, एप्लीकेशन फीस है वो $110 है। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਪਸਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ, ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕਸ ਲਈ हर चीज़ बारे जानकारी तुसी इन्हों दे ऑफिस विजिट करके ले सकते हो। मैं फीस स्ट्रक्चर बारे भी गल सर अभी फीस स्ट्रक्चर से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि 2 और इनके 3 मेजर प्रोग्राम और ऐड हो रहे हैं, जो कि लॉन्च तो हो जाएंगे मई में, लेकिन जनवरी 2023 से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होंगे। जैसे मैंने बताया कि बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग। इसके अलावा 3 मेजर प्रोग्राम जो जनवरी 2023 के लिए ओपन हो रहे हैं। आईटी के 2 प्रोग्राम हैं, कंप्यूटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, इसके अलावा इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी, और कंप्यूटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटिंग एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी। दीज आर द 3 प्रोग्राम व्हिच आर एडिंग बाय द निपिसिंग यूनिवर्सिटी फॉर द अपकमिंग इनटेक। दैट्स वेरी गुड। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। So I think so Laura will be Laura, what are the fee structure for all the programs? That's a wonderful question. Right now, our fees are 21,000 Canadian dollar per academic year. So that's what our fees are for any of the programs. Do you have any scholarship program also? We have a scholarship for those students that are coming from high school that are initiating an undergrad program, and if the student have grades superior to above 80% and on, they will have a scholarship from 1,000 to the equivalence to domestic tuition, which is close to 7,000. Okay, that's very good. अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो जो बच्चे 80% एंड अबव मार्क्स लेके आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए। अब यहाँ पे क्राइटेरिया है 12th में अगर आपके 80 to 84% मार्क्स हैं तो आपको $1,000 पर सेमेस्टर आपको मिलेगा। तो मतलब पर ईयर आपको मिलेगा $4,000 टोटल मिलेगा, बट आपको ये परसेंटेज मेंटेन रखनी है। अगर आपके 85 to 89% मार्क्स हैं तो पर ईयर $1,500 का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, तकरीबन $6,000 टोटल ड्यूरेशन का। इसके अलावा अगर आपके 90 से लेके 94% तक आपके मार्क्स हैं 12th में तो $2,500, $10,000 टोटल आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपके 95% एंड अबव मार्क्स हैं तो आपको $7,000 की पर ईयर की स्कॉलरशिप है। तो $28,000 के आसपास की स्कॉलरशिप है। और एक जो डोमेस्टिक स्टूडेंट की फीस जितनी होती है उतनी स्कॉलरशिप बच्चे को मिल रही है अगर आपके 95% एंड अबव मार्क्स आप हैं। और आपको बट ये मेंटेन रखना पड़ेगा अगर आपको हर ईयर इसकी स्कॉलरशिप को ग्रैब करना है तो। अच्छा, ये प्रदीप जी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਲਓ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਡਿਗਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ 'ਚ ਜਾਣਾ। ये ऑप्शंस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए बहुत एक ऐसी कैटेगरी जैसे हमने पहले ही बात करी कि जो हमेशा से डिग्री देखती है, ठीक है, तो वो तो जाहिर है। सेकेंडली मैं उन स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि ये आपकी लाइफ भर की कमाई है। अगर आप एक बार टिक के अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेते हो, जहाँ 2 साल पढ़ोगे आप 4 साल भी पढ़ सकते हो। अगर 4 ईयर की डिग्री आप कंप्लीट करते हो तो एम्प्लॉयर भी है आपके लिए, ठीक है, जॉब्स भी अवेलेबल हैं और आपकी सेटलमेंट भी जल्दी है। और आपकी लाइफ में एक टैगलाइन लग जाएगी कि आपने डिग्री कर रखी है। जो बच्चे 12th पास डिप्लोमा करते हैं नेचुरल सी बात है डिप्लोमा होल्डर ही रहेंगे। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन करी, बैचलर करी, वहाँ से डेफिनेटली वो डिग्री होल्डर होंगे। सो नर्सिंग वाले प्रोग्राम बारे how many seats do you have for the nursing students? Nursing is one of our high demands program right now, and although there are not too many seats available, we also have seats for international students, and they will be having a wonderful opportunity of not only being accepted but having a scholarship.
having not any scholarship for that. ਅੱਛਾ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, they have that 6.5 बैंड्स, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅੱਛੀ रहेगी? नहीं देखिए, यहाँ पे इनके पास यूजी प्रोग्राम है नर्सिंग में, और यूजी प्रोग्राम में अगर बात करें तो विदाउट मैथ है, जो कि जहाँ की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज और कॉलेज मैथ के साथ मांगते हैं। यहाँ विदाउट मैथ आप नर्सिंग कर सकते हो, लेकिन जनवरी 2023 में आपको इनटेक मिलेगा, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मोर देन 85 और 90% के पास आपके मार्क्स होने चाहिए। और आइल्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो आइल्स की रिक्वायरमेंट 7 बैंड है, नो लेस देन 6.5। तो इनके जो मेडिकल प्रोग्राम जैसे बायोलॉजी है, नर्सिंग है एंड साइकोलॉजी है, ये विदाउट मैथ ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन हर एक में 7 बैंड की रिक्वायरमेंट है। जैसे बायोलॉजी में 6.5 बैंड है, लेकिन अगर नर्सिंग की बात करें और साइकोलॉजी की बात करें, विदाउट मैथ तो है, और 7 बैंड नो लेस देन 6.5 है। आइल्स बैंड ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਵਿਦ जी डेफिनेटली वेस्टर्न ओवरसीज की आप हेल्प ले सकते हैं। वी आर द बेस्ट टीचर। आपको 9 बैंड की परफेक्ट प्रिपरेशन हम कराते हैं। इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर मेरे पास है। डेली हम 7 से 8 घंटे की तैयारी कराते हैं। ऑनलाइन पोर्टल है हमारे पास। आपने ऑफलाइन पढ़ना ऑफलाइन भी पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ना ऑनलाइन भी पढ़ो। साथ साथ में हम आपको ऑनलाइन पोर्टल पे प्रैक्टिस भी करने के लिए देते हैं। आप घर जाके अपनी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग चारों मॉडल्स आप ऑनलाइन पोर्टल पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ? देखिए इट डिपेंड, इसका कोई कुरिकुलम नहीं है। एक बच्चा विदाउट कोचिंग भी कर लेता है, लेकिन कुछ बच्चे को हफ्ते भी लगते मैक्सिमम हैं, कोई 1 महीना लगाता है, कोई 2 महीने, एवरेज 2 से 3 महीने एक बच्चे को लगते हैं। जिस एरिया में हम बिलोंग करते हैं उस एरिया में एवरेज स्टूडेंट को 2 से 3 महीने लगते हैं। मैक्सिमम 6 महीने? 6 महीने तो सर ये तो फिर पंचवर्षीय योजना बन जाती है। वैसे ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਐਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਵੀਰ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਆਇਲਸ 22,000 रुपये 'ਚ। ਉਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚਾ ਆਇਲਸ ਕਰੇਗਾ? सर ये ना, अब हर एक की अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन चीप जो मार्केटिंग होती है वो जेन्युइन स्टूडेंट्स को सूट नहीं करती। अब इसमें हो सकता है कुछ स्टूडेंट को, मतलब वो अगर लाइफ टाइम करेगा तो वीज़ा कब लगवाएगा? ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਂਡ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं देखिए 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम होते हैं। ये भी वो स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जो थोड़े से अबव एवरेज होते हैं तो 1 महीने या 2 महीने में, 1.5 महीने में कोचिंग लेकर निकल जाते हैं। इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर होने चाहिए। जहाँ 15 लाख रुपये आप लगा रहे हो अपनी बाहर जाने के लिए, 18 लाख रुपये लगा रहे हो, तो एक अच्छे चंगे इंस्टीट्यूट्स में अच्छे तरीके से तैयारी करो। इसमें लालच ना लेके आओ कि लाइफ टाइम का मतलब ये है कि जी आप बार बार फेल होते रहोगे, बार बार आपको आइल्स कराते रहेंगे। व्हाट इज दिस? ਸੋ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਇਲਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਪਸਿੰਗ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, जी ਬਟ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ जलंधर में होने जा रहा criteria है जी 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को जलंधर में होने जा रहा है आइल्स रियलिटी टेस्ट, और 30 अप्रैल को कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है। इसके लिए आपको IELTSrealitytest.com पे जाके अपनी सीट बुक करनी होगी, या वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में। इसके अलावा PTE एंड CD IELTS रियलिटी टेस्ट आप देना चाहते हैं तो 27 अप्रैल को होने जा रहा है वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में, और ऑनलाइन दोनों तरीके से। And Laura, what's the message for our viewers? What you want to say, because many students, parents are listening you and watching you through our show. I would like to just invite everyone to come to our university. And why NIPISM? Well, because we are a small university, we have supportive professors, we have beautiful residents that are ranked number 1 in Canada. We rank also number 1 in student services because we care about the student success. And that is why make us different from the rest of the options. Thank you very much for this information. You're welcome. ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਪਸਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੌਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਫਿਸ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਨਿਪਸਿੰਗ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जी थैंक यू जी, थैंक यू। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।